आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर केसेस. फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड आप ऑलरेडी कर चुके हैं. देन वन इज द कोवलेंट बॉन्ड. So in case of ionic bond, it is a bond which is formed between metal and non-metal by the loss and gain of electron, that is by the transfer of electron. Whereas in case of covalent bond, it is formed by sharing a shared pair of electron between two non-metals or between two atoms. So hydrogen bond is different as in this case there is no loss, gain or a sharing. It is just a dipole interaction. So it is a kind of interaction which takes place, and yes, it will involve hydrogen atom in it. For example, so first of all we will discuss what is dipole interaction. Now in case how dipole is formed in a molecule. So as we know, whenever hydrogen is attached to an electronegative element, now electronegative meaning highly electronegative, that is fluorine, oxygen or nitrogen. These three are only which shows the hydrogen bonding. So what happened when hydrogen is attached to, for example, fluorine, and we know that it is a single bond, it is formed by the sharing of pair of electron, but fluorine is highly electronegative. It attracts small shared pair of electron towards itself, due to which fluorine carries a delta negative charge, and since hydrogen has lost some of its character, it carries a positive charge. तो है तो ये कोवलेंट बॉन्ड, पर इसमें एक आयनिक करेक्टर आ जाता है जिससे स्मॉल चार्ज फॉर्म हो जाता है HF पे. तो ये अब एक्ट करेगा एक डाइपोल की तरह. दो पोल्स हो गए, नेगेटिव एंड एंड द पॉजिटिव एंड. So whenever hydrogen is attached to FON, तो पोलैरिटी हो जाएगी बॉन्ड में, बट मैक्सिमम तब होगी जब यही तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नॉट द क्लोरीन, नॉट द आयोडीन, और कोई हेलोजन नहीं होगा. ठीक है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन whenever attached to hydrogen, this type of interaction comes into play which involves the hydrogen bonding. How? Let's see. तो HF है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज. अब एक और मॉलिक्यूल जो इसकी विसिनिटी में नियर बाय होगा, सेम HF. नाउ दिस नेगेटिव चार्ज कैन इजीली अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस डॉटेड इंटरैक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ये कोई एक स्ट्रेंथन नहीं है, इट इज जस्ट इंटरैक्शन बिटवीन टू डाइपोल. One dipole is this one dipole is this one. So the interaction between these two is known as the hydrogen bonding. Now, important point that hydrogen is involved, but only when it is attracted by these three elements, that is FON, which is further attached to hydrogen. And we can say hydrogen is covalently attached to one of the electronegative element and attracted by hydrogen बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट. तो ये दो टाइप की बॉन्डिंग एक टाइम पे ये हाइड्रोजन शो कर रहा है. कोवलेंट बॉन्ड इस F के साथ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंड मॉलिक्यूल के F के साथ. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो फर्स्ट कंडीशन यू ऑलरेडी नो दैट हाइड्रोजन एटम is must be linked to only highly electronegative element like F, O and N. Or in other way we can say that size of electronegative element must be small. Size of electronegative element must be small. So these two are the important condition. Now for example यहीं से एक पॉइंट आता है कि why not chlorine. अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोली जाए तो सेम होती है 3, then why not we are using chlorine here. So then comes the point of size. तो पहला पॉइंट तो हमने बोला कि that it must be electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम बात करें तो N and Cl दोनों ही 3 हैं. बट देन comes about the size. तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल साइज है. इट कैन स्ट्रांगली अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड हेंस गेट द डेल्टा नेगेटिव एंड इट acquires the delta positive. So greater will be the dipolar interaction, or more dipole is created in this case, whereas in this case as the size of Cl is very much large, it is not able to attract as strongly as attracted by nitrogen.
So dipole is created here, but that dipole is very weak to interact. That's why कि कहने को इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों का सेम है, but small size electronegative element will be more efficient in hydrogen bonding. और अगर पोलैरिटी की लैंग्वेज में बोलें तो NH bond is more polar because size of N is very small and great polarization will take place, whereas in case of Cl size is bigger और polarity bond की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. It is less polar in comparison to NH. So if we define hydrogen bond, तो hydrogen bond is a dipolar interaction between hydrogen atom of one molecule which is attached to electronegative atom and which is further attracted by another electronegative element which is attached to hydrogen. Next point is the difference between this hydrogen bond and the covalent bond. Now hydrogen bond, as we can see, is only a dipole-dipole interaction, whereas this covalent bond which is formed between this is formed by actual sharing of electron. तो actual electron pair shared हुए हैं, that's why only this covalent bond is formed, whereas hydrogen bond is just a dipole-dipole interaction. Now the second important point, hydrogen bond is only formed between hydrogen whenever it is attracted by these three electronegative element, whereas covalent bond is formed between sharing a pair of electron between two non-metals. It can be single, double or triple bond, or by sharing a pair of electron between any two non-metals can easily form the covalent bond. Now third, if we discuss about the strength, so as we know, hydrogen bond is just an interaction, so it is very weak in strength in comparison to covalent bond. Covalent bond is strong in nature in comparison to hydrogen bond. Next topic is types of hydrogen bonding. So there are two types of hydrogen bonding. One is the intermolecular hydrogen bonding and next one is the इंट्रा. ठीक है, डिफरेंस है थोड़ा सा ही ई और ए का ही. ठीक है, तो इट इज इंटरमोलिक्यूलर एंड दिस वन इज द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. सो इंटर मीन्स इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल. ठीक है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में इन बिटवीन. ठीक है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, वेयर एज इंट्रा मीन्स विद इन अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी HF का केस डिस्कस किया, दैट इज HF. नाउ इन दिस केस these are two different molecules, so this type of interaction between two HF is known as the intermolecule, that is it is in between two molecule. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगी, आप बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी intermolecular. Whereas whenever a compound which contain both type of molecule, for example this one is orthonitrophenol. So in this case hydrogen is present on this atom which is attached to electronegative. Now it is attracted by the another atom which is present in the same molecule, this O. So this type of bonding is known as intramolecular hydrogen bonding. एक बेसिक चीज है, बच्चे मैक्सिमम टाइम भूल जाते हैं. ठीक है, अब इंट्रा ए सबसे पहले आता है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में ही होगा ए. ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल. वेयर इज इंटर बिटवीन ई, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया NH3, वन मोर मॉलिक्यूल NH3. नाउ दिस N which is carrying an electronegative, this H carry the electropositive, can easily attract. So this type of bonding is known as hydrogen bonding, but it is specifically intermolecular hydrogen bonding as it is between two different molecules. ठीक है, between two molecules के बीच में होगी, then it is intermolecular. Now for example water है, again ये delta negative है,
H डेल्टा पॉजिटिव है। अब ये दूसरा H, सेकेंड H जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसे अट्रैक्ट करता है, देन ऑल्सो इट इज अ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एक बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटर एंड द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपने एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन के साथ। इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको अंडरलाइन करना है, दैट इट इज इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वेयर एज इट टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। ये मेजर पॉइंट है जो आपने बॉन्डिंग में अंडरलाइन करने हैं। दैट इज एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको इस वर्ड को, दैट इट टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, आपने इसको मेंशन करना है। जो अभी तक हमने कंसेप्ट किया इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और वी कैन से कॉन्सिक्वेंस है जो आपकी क्लास 11th एंड 12th के मैक्सिमम टॉपिक को इन्फ्लुएंस करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16, ठीक है। बिलो ऑक्सीजन सल्फर इज प्रेजेंट देयर। अब अगर इन दोनों के हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स, तो ऑक्सीजन फॉर्म करता है H2O और सल्फर फॉर्म करता है H2S, ठीक है। अब जैसे कि ग्रुप 16 है और ये आप आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो रीजन कि H2O एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, वेयर एज H2O एग्जिस्ट करता है गैस फॉर्म में। बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू ग्रुप 16, देन व्हाई दिस हैपन? So reason is that in case of water, H is attached to an electronegative oxygen and this bond is more polar, due to which this polarity there is a dipole-dipole interaction, or we can say intermolecular hydrogen bond formed between two water molecule, hence water exists as an liquid. Whereas in case of H2S, this polarity is not enough to attract or form the hydrogen bonding, and since hydrogen bonding is not possible in case of H2S, hence it exists as a gas. अब जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं, अगर इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो वो गैस एग्जिस्ट करेंगे, but because of this hydrogen bonding they are coming together or they come near to each other, due to which they exist in liquid state. तो ये एक 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट H2O एंड H2S बोथ एलिमेंट बिलोंग टू 16 ग्रुप, बट वन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, अदर एग्जिस्ट एज ए गैस. व्हाई? रीजन, इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन फॉर्म, hence it exists as liquid. Now the next point is effect of hydrogen bonding on the boiling point and the melting point. अब कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है, तो सबसे पहले तो हमें बॉइलिंग पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय द बॉइलिंग? बॉइलिंग मीनिंग वी हैव एनी कंपाउंड और एनी मिक्सचर जिसमें हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है, ये ठीक है. बॉइलिंग का मीनिंग है हमें ए को इवेपोरेट कर देना है और जिस टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट होगा दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेनेवर there is a compound which can show hydrogen bonding. Now for example, if we take the example of the NH3, so this NH3 is easily hydrogen bonded with another molecule of NH3 or n number of NH3 present there. So meaning when we have to evaporate, we have to break this bond also, so more energy is required to break this बॉन्ड. जो ऑलरेडी नॉर्मल अगर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसमें सिंपल मॉलिक्यूल हम इवेपोरेट कर सकते हैं, बट जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना होगा, देन ओनली इट इवेपोरेट. तो इन कंपैरिजन इफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम से. That's why जितने भी ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स हैं, फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स हैं हर एक ग्रुप के, दैट इज फॉर एग्जांपल NH3 अपने ग्रुप में, ठीक है. नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, दैट इज PH3. सिमिलरली ऑक्सीजन का भी हमने डिस्कस किया, H2O एंड H2S, देन HF एंड HCl. तो अगर हम फर्स्ट 2 मेंबर्स को ही कंपेयर करें तो हमेशा फर्स्ट मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेकेंड मेंबर से या अदर ग्रुप मेंबर से ज्यादा है. रीजन, दीज ऑल अबव कैन इजिली शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
सो अभी आप ये कंप्लीट डाटा देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी मच हाई है इन कंपैरिजन टू द अदर मेंबर्स, दैट इज इन केस ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। NH3, H2O, HF को आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 11th एंड 12th दोनों में ही पूछा जाता है, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पहले तो हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 11th में हैं और अभी तक अगर आपने ऑर्गेनिक नहीं किया है तो आप स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे, तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। फिनॉल इज द कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, ठीक है, और अल्कोहल OH ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक जर्नल कंपाउंड है जिसको हम बोलेंगे फिनॉल। तो कोई भी बेंजीन रिंग जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड होती है, मीनिंग यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इनिशियली जो बेंजीन रिंग थी उसके सभी कार्बन सेम थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई भी पोजीशन होती है वो सेम होती, बट जैसे ही यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया, अब हम इन पोजीशन के नेमिंग कर देते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल OH के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन सेम है, 1 and 1 बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों पोजीशन सेम है, एक तरह से मिरर की तरह देखें तो ये दोनों सेम है, और एक ये थर्ड पोजीशन है। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, जो ये सेकेंड पोजीशन है इसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है। दिस वन इज मेटा, दिस वन इज ऑल्सो मेटा, एंड दिस वन इज पैरा, ठीक है। तो एक जर्नल नेमिंग बता रही हूं मैं आपको, क्वेश्चन तभी समझ आएगा, तो पहले एक नेमिंग पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट था कि ये क्या होता है, बेंजीन पे जब OH प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। और अगर इस पर कोई भी ग्रुप यहां प्रेजेंट है, ठीक है, अब वो ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब होता है NO2। तो जब ऑर्थो पोजीशन पे NO2 प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और अगर फिनॉल में ही NO2 कहां प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन कौन सी होती है, थर्ड पोजीशन, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए आपको। सो दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये क्वेश्चन ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, स्टीम वॉलेटाइल दैट ऑन पासिंग द स्ट्रीम ऑर्थो कैन इजिली फॉर्म वेपर। So considered it as a molecule A, considered as it as a molecule B. अब अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो उसमें n नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब इस केस में NO2 and OH are very near to each other, they can easily form intramolecular hydrogen bonding. इंट्रा का मतलब होता है विदिन, विदिन एटम ही A मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, तो इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है कि ये बाहर बनाए इन कंपैरिजन, ठीक है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे A मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं जो कि सेल्फ सेटिस्फाइड हैं बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जैसे ही स्ट्रीम आएगी, बिकॉज ये कहीं और बॉन्डेड नहीं है और ये खुद में ही इन्वॉल्व है, दे कैन इजिली फॉर्म द वेपर्स, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, अब इंटरमोलिक्यूल तो हो नहीं सकता, इंट्रामोलिकुलर तो हो नहीं सकता, इंट्रा रीजन डिस्टेंस बहुत दूर है, ये एक दूसरे की विसिनिटी में नहीं है, बट जैसे ही इसके पास एक और B मॉलिक्यूल इसके आसपास आता है तो ये क्या इजिली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, ठीक है। यहां डिफरेंस है, A में इंट्रा हो रहा है, B में इट इज फॉर्मिंग द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यू टू दिस, तो अगर आप इमेजिन करें कि ये लिक्विड है जिसमें बहुत B और B आपस में बॉन्डेड है, B एंड B बॉन्डेड, B एंड B बॉन्डेड, तो जहां पे दो A आपस में बॉन्डेड नहीं थे, रीजन A में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वेयर एज इन केस ऑफ B वो आपस में बॉन्डेड एंड डिफरेंट एटम्स बिकॉज ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब स्टीम इजिली इनको वेपर नहीं बना सकती, वेयर एज इन केस ऑफ ortho-nitrophenoल it is involved in intramolecular hydrogen bonding, it is easily a steam volatile, whereas in order to vaporize it we have to first break this bond to provide more energy. So steam is not sufficient to break this energy, hence it is less volatile in comparison to ortho-nitrophenol. So क्लास 11th में तो ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये टॉपिक कर रहे हैं, इन क्लास 12th ये फिनॉल के कंपोनेंट का एनसीईआरटी का क्लास 12th का भी क्वेश्चन है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बना के, स्ट्रक्चर बना के, ये रिप्रेजेंट करके कि ये इंट्रामोलिकुलर शो कर रहा है, ये इंटरमोलिकुलर, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। वी कैन से पोलर इज सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर इज सॉल्युबल इन द नॉन पोलर। तो वहां पे क्या पॉइंट आता है, अगर हम बात करें अल्कोहल, ROH ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये, ठीक है। और अगर हम वाटर की बात करें H2O, अब रीजन है क्योंकि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, दैट्स वाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। अदरवाइज यहाँ पे ऑर्गेनिक ये ग्रुप लगने से ये नॉन पोलर हो सकता है। R जो होता है, बिग अल्काइल ग्रुप जब होते हैं, देन इट इज अ नॉन पोलर, बट वाई देन अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर? तो रीजन है ROH में O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव and it can easily form hydrogen bonding with hydrogen of water molecules. So due to or this hydrogen with oxygen of this molecule, so that's why alcohol is soluble in water, because it can easily form hydrogen bond with water.